मैडम यहाँ रखा हुआ है इसका हेडफोन। अहमद ये दे दो मैडम को। मैडम इसका दूसरा है, पता नहीं यहाँ पे ये एक्स्ट्रा रखा हुआ था, ये वहाँ का ही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं बेटा बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, गुड इवनिंग। कौन कौन ऑनलाइन है?
ہیلو گڈ ایوننگ. کوئی اسٹوڈنٹ نہیں مجھے بتا رہا میری آواز آ رہی ہے بیٹا. جو بھی 3-4 اسٹوڈنٹ آن لائن ہیں میرے پاس شو ہو رہے ہیں پلیز مجھے بتائیے میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کلیئر ہے آواز؟ کوئی ایشو تو نہیں ہے آواز میں؟ اوکے جی تھینک یو روزینہ. آپ نے بتایا کہ میری آواز کلیئر ہے بٹ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں. آئی ہیو جسٹ 5 اسٹوڈنٹس. باقی کلاس فیلوز کو بھی میسج کریں کہ جلدی جلدی سے جوائن کر لیں تاکہ ہم اپنی جو ہے کلاس اسٹارٹ کریں. آپ نے جتنا مجھے فیڈ بیک نہیں دیا میں آپ سے کہا تھا ریٹرن مجھے لے کے میڈم وہ میں نے لے لیا. میں آپ کو بھی جاتے ہوئے نہیں کرتی. لیکن وہ میں نے لکھوا لیا. کیا بات ہے آپ نے کمیونیکیٹ کیا باقی اسٹوڈنٹس کو وائی دے آر ناٹ کمنگ اسٹل 5 اسٹوڈنٹس آر ہیئر واٹ از دا ریزن؟ شاہدہ، روزینہ، مریم، کمیونیکیٹ کیا آپ نے باقی اسٹوڈنٹس کو؟ اوکے روزینہ تھینک یو. آئی تھنک 10 منٹس تو ہو گئے ہیں ویٹ کرتے ہوئے تو اب ہم اپنا لیکچر اسٹارٹ کر لیتے ہیں بیکاز وہ کتنا ویٹ کرنا. جی مریم اب ٹھیک ہے آواز میری بیٹا؟ مریم اب بتائیے گا اب ٹھیک ہے آواز میری؟ اوکے 3rd یونٹ ہم پڑھ رہے تھے کمیونٹی ایز اے کلائنٹ جس میں ہم کافی چیزیں کور کر چکے ہیں. اب ہم اسے آگے کنٹینیو کرتے ہیں. یہ پکچر آئی تھنک ہاں یس ایگزیکٹلی دس واز دا پکچر. میں آپ کو کمیونٹی کے جو ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں وہ میں آپ کو پڑھا چکی تھی. اس کے بعد ابھی ہم تھوڑا سا ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر ہم ایک کمیونٹی میں گئے ہیں تو وہاں ہمیں بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن بھی ہوگا اور ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا بھی ہوگا، سمجھنا بھی ہوگا.
تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اوور آل کوئی بھی ہیلتھ سسٹم ہو سکتا ہے نا، جیسے ہاسپٹل، جیسے ہمارے سٹیز ہوتی ہیں، سٹیز میں ڈفرینٹ ہاسپٹلز ہوتے ہیں، بڑے ہیلتھ سسٹمز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ چھوٹی ڈسپینسریز بھی ہوتی ہیں جو آپ کو کمیونٹی میں نظر آ سکتی ہیں، دے ول کم انڈر ہیلتھ سب سسٹمز. ٹھیک ہے جی. اب ہیلتھ سب سسٹمز میں جو فوک میڈیسن ہے اور ہیلتھ فائنینس ہے، ٹھیک ہے نا جی. بیٹا میری آواز آ رہی ہے؟ کون کون اسٹوڈنٹ آن لائن ہے ذرا مجھے بتائیں، نام لکھ کر سینڈ کریں، مجھے پتہ لگے کون کون سے اسٹوڈنٹس آن لائن ہیں. ہیلو، آواز آ رہی ہے میری بیٹا؟ گڈ ایوننگ، کین یو ہیئر می؟ اوکے ٹھیک ہے بیٹا. روزینہ تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تو لگ رہا تھا شاید آواز نہیں جا رہی، اس لیے میں کنفرم کرنا چاہ رہی تھی. چلیں میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ جو کمیونٹی کے جو ٹھیک ہے، ایک ہمارا ہیلتھ سسٹم ہوگا، اسی طرح سے کچھ سب ہیلتھ سسٹمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو سب ہیلتھ سسٹمز ہوتے ہیں کسی بھی کمیونٹی کے اندر، وہ جو ہے ظاہر ہے جیسے ایگزامپل سے کمیونٹی میں ڈسپینسریز ہو سکتی ہیں. اس میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جب ہم کمیونٹی میں جاتے ہیں تو وہاں جیسے فوک میڈیسن کا بھی کانسیپٹ ہوتا ہے. جو فوک میڈیسن کا کانسیپٹ ہے اس میں ہمیں رسپیکٹ کرنا پڑے گا، ان کے کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. دیکھیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جیسے فوک میڈیسن میں وہ ریلیجیس کیورز ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، ہر کمیونٹی میں اپنے مذہب کے لحاظ سے ریلیجیس کیورز ہوتے ہیں. یعنی جیسے ہم بینگ اے مسلم ڈفرینٹ قرآنی آیات سے جو دم وغیرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ہیلپ مل جاتی ہے، وہ ہمارا بلیف بھی ہے اور نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ فوڈ اسٹورز ہیں، یعنی ڈفرینٹ، یہ جن کو میں آپ کو کامن لینگویج میں بتاؤں تو جڑی بوٹیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا بیٹا، انہیں کہتے ہیں ہیلتھ فوڈ اسٹورز. ٹھیک ہے، وہ یعنی آپ کو ڈفرینٹ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جڑی بوٹیاں وغیرہ، وہ آپ استعمال کرتے ہیں. تو میرا سمجھانے کا یہاں پہ یہ مقصد ہے کہ جب ہم کسی بھی کمیونٹی میں جائیں گے، اس کی انوینٹری بنائیں گے، تو وہاں پہ ہم نے اس چیز کا خیال بھی رکھنا ہے کہ ان کے کلچر کو، ان کے جو بھی ویلیوز ہیں اس کو ہم نے رسپیکٹ بھی کرنا ہے. پلس آپ کو یہ ساری چیزیں بھی وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. اس کے بعد بیٹا اس کمیونٹی کے ہیلتھ فائنینس کو اگر ہم دیکھیں گے، ہیلتھ فائنینس کو اس میں دیکھیں پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس بھی ہوتی ہے اور میڈی کیئر اینڈ میڈی کیئر. جیسے میں نے آپ کو ڈفرینٹ ہیلتھ کیئر کے ماڈلس پڑھائے تھے، اس میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کہیں پرائیویٹ انشورنس بھی ہوتی ہے، کہیں گورنمنٹ جو ہوتی ہے، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس بھی انشورنس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہی ڈفرینٹ ٹائپ ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کمیونٹی کے اندر کس قسم کی، مطلب کس طریقے سے ہیلتھ کو بیسیکلی فائنینس کیا جا رہا ہے. اس کے بعد پبلک ہیلتھ ہے بیٹا. پبلک ہیلتھ میں جیسے نرسنگ ایجنسیز اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کون کون سے موجود ہیں جو آپ کی پبلک ہیلتھ کو ڈیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. کون کون سی نرسنگ ایجنسیز ہیں جو پبلک ہیلتھ کے لیے کام کر رہی ہیں، کون
जो पब्लिक हेल्थ के काम कर रहे हैं। उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, जो कम्युनिटी हेल्थ है या कम्युनिटी है आपकी, उसमें आप देखें कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग किस तरह से दी जा रही है उस कम्युनिटी के अंदर, यानी क्या कोई मेडिकल स्कूल्स हैं, कोई नर्सिंग स्कूल्स हैं, अगर हैं तो वहाँ कौन कौन से प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं, वो आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। अच्छा, और प्राइवेट प्रैक्टिस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें प्राइवेट में भी आपको पता है कि डिफरेंट हमारे पास हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट का मतलब ये है कि वो जो प्राइवेट प्रैक्टिसेस होती हैं, यानी एक तो होता है कि आप किसी हॉस्पिटल में, जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें बहुत से लोग की ये रूटीन होती है कि गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो डॉक्टर्स होते हैं, वो वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जॉब कर रहे होते हैं, उसके अलावा अपनी प्राइवेट प्रैक्टिसेस भी करते हैं। तो वो प्राइवेट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं बेटा? फिजिशियन के ऑफिसेज हो सकते हैं, ठीक है जी, यानी डॉक्टर जो प्राइवेट अपनी वो कर रहे होते हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे थे, उसे हम कहते हैं, जैसे डॉक्टर का क्लिनिक हो गया, डेंटिस्ट के ऑफिस हो गए। इसके अलावा बेटा ग्रुप हेल्थ केयर, उसमें यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विसेज या फिर हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी ग्रुप हेल्थ केयर के डोमेन में हमें देखना पड़ेगा कि अगर बहुत सारे कोई एक बड़ा सा ग्रुप है, उसकी हेल्थ केयर के लिए क्या कोई फैसिलिटीज़, कोई इस किस्म की चीज़ें, कोई ऑर्गेनाइजेशन उस कम्युनिटी के अंदर मौजूद है या नहीं है। उसमें जैसे होता है बेटा, उसको हम यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विसेज का नाम भी देते हैं, या फिर डिफरेंट हेल्थ मेंटेनेंस की ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, ठीक है जी। फिर हॉस्पिटल, जी मैम लेक्चर चल रहा है। हॉस्पिटल्स एंड लार्ज क्लिनिक्स हैं, ठीक है। हॉस्पिटल और जो लार्ज क्लिनिक्स हैं, उसमें देखें जैसे चिल्ड्रंस हॉस्पिटल हो गए, ग्रुप हेल्थ क्लिनिक्स हो गए, उसमें यानी ये चीज़ें वहाँ पे भी यूज़ होती हैं। जैसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल एक वो फिर स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स हो जाते हैं ना। इसके अलावा फार्मेसी एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी, फार्मेसी और मेडिकल टेक्नोलॉजी का मतलब ये है, फार्मेसी एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी में लोकल ड्रग स्टोर है या फिर मेडिकल सप्लाई कंपनी है। यानी फार्मेसी को ज़ाहिर है जो कोई लोकल ड्रग स्टोर हो सकता है जो फार्मेसी की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा, और मेडिकल टेक्नोलॉजी यानी जो इक्विपमेंट डिफरेंट मेडिकल के यूज़ होते हैं ना, उसको हम मेडिकल सप्लाई कहते हैं। तो डिफरेंट जो मेडिकल के इक्विपमेंट्स हैं या मेडिकल की जो सप्लाईज़ हैं, उनकी कंपनीज होती हैं जो इक्विपमेंट बनाते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें इसके साथ क्यों कनेक्ट है, रोल्स का जो वर्ड है उसके साथ क्यों कनेक्ट है? उसके साथ ये इसलिए कनेक्ट है बेटा जी कि इन सब का देखें अपना अपना रोल है उस कम्युनिटी के अंदर। जैसे प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस वालों के हैं, मेडिकल स्कूल है, नर्सिंग स्कूल है, यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विसेज है, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल ड्रग स्टोर है, मेडिकल सप्लाई कंपनी है। तो इन सब के अपनी अपनी जगह पे एक रोल मौजूद है, ठीक है जी। तो उन रोल्स को ज़ाहिर है हर शख्स अपनी अपनी जगह पे वो रोल परफॉर्म कर रहा है। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा आपको समझाने का मकसद ये था कि ओवरऑल ये आपको मैंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर समझाया है, तो आप इसको किसी छोटी कम्युनिटी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको इवन किसी बड़े सिटी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड वी कैन अप्लाई दिस ऑन अ कंट्री ऑल्सो, ठीक है जी। तो ये चीज़ है। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि कम्युनिटी की नीड असेसमेंट करने की कौन कौन से टाइप्स होती हैं, या वो कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिटी की नीड्स को असेस कर सकते हैं। फैमिलराइजेशन और विंडशील्ड सर्वे, सबसे पहले इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स स्टडिंग डाटा विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन अ कम्युनिटी एंड गैदरिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ फर्स्ट हैंड डाटा टू गेन अ वर्किंग नॉलेज ऑफ द कम्युनिटी। सबसे पहले क्या है, फेमिलराइजेशन या फिर उसे विंडशील्ड सर्वे भी हम कहते हैं, ठीक है। फेमिलराइजेशन या फिर विंडशील्ड सर्वे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि देखें ज़ाहिर है उस कम्युनिटी के ऊपर पहले भी किसी ने काम किया होगा, या अगर नहीं भी किया होगा तो आपके पास वहाँ के लोगों से डाटा आपको मिल सकता है। तो कुछ डाटा तो वो होता है जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद होता है, आपके पास अवेलेबल होता है, उसको हम स्टडी करते हैं इसमें। और इसके अलावा कुछ जो फर्स्ट हैंड डाटा हमने कलेक्ट किया होता है, यानी वहाँ जो लोग मौजूद हैं, हमें फर्स्ट हैंड का मतलब ये है कि जो ईज़िली
एक्सेसिबल होता है जो ना बेटा, यानी इजीली हमारे पास जो लोग इजीली अवेलेबल होंगे, हम उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाती है कि थोड़ा सा हमारे पास वर्किंग नॉलेज आ जाता है, यानी हमारी कम्युनिटी के बारे में हमें इतना नॉलेज मिल जाता है कि हम उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, बेसिकली तो यही है ना कि हमने अपनी कम्युनिटी की नीड्स को असेस करना है। कम्युनिटी की जब तक हम ज़रूरियात को असेस नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम कैसे अपनी कम्युनिटी को केयर प्रोवाइड कर सकेंगे या अपनी कम्युनिटी के लिए डिफरेंट प्लान्स बना सकेंगे। सो ऐसा ही है कि कम्युनिटी की नीड असेसमेंट में ज़ाहिर है एक ये मेथड मैंने आपको बता दिया, फेमिलियराइजेशन या शील्ड सर्वे। इसमें देखें आप बिल्कुल अंडरस्टूड है कि हाँ, किसी ने अगर इस कम्युनिटी पे पहले से काम किया होगा तो भी हमारे पास जो डाटा आएगा उससे तो भी हम ज़ाहिर है अपने लोगों की नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, और जो हम वहाँ कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, अगर हम उनसे भी कुछ फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उससे भी हमें ज़ाहिर है लोगों की नीड्स हमें समझ आ जाएंगी ना, लोग खुद से अपनी ज़रूरियात बता देंगे, हम उनकी नीड असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद प्रॉब्लम ओरिएंटेड असेसमेंट है, सेकंड टाइप जो है दैट इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड असेसमेंट। प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्या होती है बेटा, जब तक हम उसके लिए प्रॉब्लम ओरिएंटेड के लिए भी ज़रूरी होता है कि हमें पहले जनरलाइज्ड सर्वे करना पड़ता है। जैसे मैंने विंडशील्ड सर्वे की बात की, जब हम जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं तो उससे हमें एक जो प्रॉब्लम जो वहाँ से हमने आइडेंटिफाई करनी होती है ना, प्रॉब्लम ओरिएंटेड जो असेसमेंट होती है ना, उसमें यही होगा कि पहले हमने सारी जो है ना ये चीज़ें जो हमने जनरली डाटा कलेक्ट किया उसी के थ्रू हमें पता लगेगा ना कि हमारी कम्युनिटी में कौन सी प्रॉब्लम इस वक्त रन कर रही है। और दूसरा मेथड ये भी हो सकता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड असेसमेंट का कि हमें पहले से किसी ने बता दिया है कि जी दिस इज़ द प्रॉब्लम। देखिए समटाइम हमें टास्क भी दिए जाते हैं ना कि आपके पास ये फलां कम्युनिटी है, जैसे हॉस्पिटल की एग्जांपल ले लें, ये या वार्ड की एग्जांपल ले लें, ये पेशेंट है, इनकी ये प्रॉब्लम है। सो दिस इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड असेसमेंट, यानी उसमें फिर हम सिर्फ और सिर्फ उसकी जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर असेसमेंट करते हैं। यानी प्रॉब्लम तो ठीक है, हमें बेशक पता होगी, प्रॉब्लम हमें पता है, लेकिन अब हमने उसके ऊपर फर्दर काम करना है कि वो प्रॉब्लम के रीजंस क्या है, उस प्रॉब्लम का एक्सटेंट क्या है, उस प्रॉब्लम को हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। यानी वो फिर हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सामने रख के असेसमेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम ओरिएंटेड असेसमेंट। फिर कम्युनिटी सब सिस्टम असेसमेंट, जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर में बताया कि आपकी जो सब सिस्टम वहाँ पे मौजूद होते हैं उनके थ्रू भी आप असेसमेंट कर सकते हैं। यानी आपकी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के जो सब सिस्टम्स हैं उसमें आप असेस करें। दोनों किस्म की असेसमेंट होगी, एक तो आपके पेशेंट से रिलेटेड आपको तमाम नीड्स पता लगेंगी, आपके पेशेंट की नीड्स क्या हैं, प्लस आपके उस सब सिस्टम की, क्योंकि बेटा उस हेल्थ के सब सिस्टम में केयर प्रोवाइड करनी है ना, तो वो सब सिस्टम आपको बताएगा कि कम्युनिटी का जो ये सब सिस्टम है उसमें क्या क्या लैकिंग्स है, क्या क्या ज़रूरियात हैं जो हमें हेल्थ सर्विसेज के सेटअप को ठीक करने के लिए उन्हें उनकी ज़रूरियात को यानी हमें पूरा करना होगा। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट जैसे आपको पता है कॉम्प्रिहेंशन का वर्ड यूज़ होता है कि जिसमें आप होल सोल तमाम चीज़ों को शामिल करें। यानी कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट का मतलब ये हुआ कि उसमें होल सोल तमाम चीज़ें शामिल होंगी, यानी ओवरऑल हम पूरी कम्युनिटी की बड़ी डिटेल में असेसमेंट करेंगे। यानी पूरी कम्युनिटी, कोई एक प्रॉब्लम पे काम नहीं करेंगे, किसी एक सब सिस्टम के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, बल्कि हम पूरी की पूरी जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करेंगे। यानी पूरी कम्युनिटी को हम चेक करेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो लोग हैं उनके साथ उनकी क्या ज़रूरियात हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। उसके बाद आ जाता है बेटा कम्युनिटी एसेट्स असेसमेंट, विच फोकसेस ऑन द स्ट्रेंथ्स एंड कैपेसिटीज ऑफ अ कम्युनिटी रादर देन इट्स प्रॉब्लम। उसके बाद आती है कम्युनिटी की एसेट की असेसमेंट। एसेट, वर्ड एसेट का मतलब पता है किसी भी बच्चे को? जनरली पहले मुझे ये बताइए कि वर्ड एसेट का जनरली क्या मतलब है?
बेटा मैंने ये पूछा है कि एक वर्ड होता है एसेट, तो यहाँ लिखा हुआ भी है लास्ट सेंटेंस में आपके ASSETS। आई एम आस्किंग डज एनीवन नो व्हाट इज एसेट? बेसिकली एसेट का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज ऑन बिजनेस, ठीक है, गुड। और कोई स्टूडेंट? वैल्यूएबल थिंग, ठीक है, गुड, ये भी आंसर ठीक है। मारिया का भी खुश नसीबा का। रोजीना आपने नहीं बताया व्हाट इज एसेट? बहरहाल आंसर आप सबके ठीक है। एसेट्स का वर्ड अगर हम बिजनेस में प्योरली यूज़ करें तो यही होता है कि व्हाट आर योर एसेट्स, यानी आपके पास इन हैंड मतलब इन्वेस्ट करने के लिए क्या है। हर चीज़, आपका फर्नीचर, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑफिस है उसमें आपका फर्नीचर है, आपका जो भी बिजनेस है, आपका मनी फॉर्म में जो भी आपके, वो सारे आपके एसेट्स होते हैं। तो कम्युनिटी में हमने एसेट्स की असेसमेंट करनी है। कम्युनिटी में एसेट्स की असेसमेंट जो हमने करनी है, ये वाली असेसमेंट हमारी फोकस करेगी नॉट ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी बट ऑन द स्ट्रेंथ्स एंड कैपेसिटीज़ ऑफ द कम्युनिटी। यानी कम्युनिटी की स्ट्रेंथ क्या है, कम्युनिटी में कि लोग जो हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी जाहिर है जो कम्युनिटी में मौजूद लोग हैं उनकी स्ट्रेंथ और उनकी कैपेसिटीज़ को ही तो हम कम्युनिटी की कैपेसिटीज़ या स्ट्रेंथ कहेंगे ना। तो सिंपली कम्युनिटी की जो स्ट्रेंथ और कैपेसिटीज़ हैं उन्हें हम इसमें जो है कम्युनिटी एसेट असेसमेंट में असेस करते हैं, जबकि प्रॉब्लम्स को इसमें हम असेस नहीं करते। जी शाहिदा, यू आर आल्सो राइट। अब कम्युनिटी के जो एसेट्स हैं उनकी असेसमेंट को हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कम्युनिटी के एसेट्स में आती हैं और कम्युनिटी के एसेट असेसमेंट में शामिल हैं। स्पेसिफिक स्किल्स, talents, interest and experiences of individual community member, local citizen associations and organization and local institution। ये हैं बेसिकली कम्युनिटी के एसेट्स। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो अब जाहिर है इनकी असेसमेंट करनी होगी कम्युनिटी के अंदर कि कम्युनिटी में हमारी कम्युनिटी के एसेट्स क्या हैं। लेकिन कोई भी स्पेसिफिक स्किल, कम्युनिटी में मौजूद जितने भी लोग हैं उनमें से जिसके पास जो भी स्किल है वो उस कम्युनिटी का एसेट है। किसी के पास कोई टैलेंट है, उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे किसी का मेडिसिन में इंटरेस्ट होगा, किसी का मेडिकल लाइन में होगा, किसी का इंजीनियरिंग लाइन में होगा, वो सब भी कम्युनिटी का एसेट है। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली एसेट का मतलब, ठीक है, वो भी सेंस में हो सकता है ना। अगर उनका मेडिकल में इंटरेस्ट होगा तो जाहिर है वो मेडिकल फील्ड की तरफ जाएंगे। एक दिन आएगा व्हेन ही और शी विल बी अ डॉक्टर और नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, तो वो अपनी कम्युनिटी के लिए सरमाया हुए ना, एसेट हुए, क्योंकि वो उनके लिए काम कर सकेंगे। सो कम्युनिटी की लोगों की स्किल्स, उनका टैलेंट, उनका इंटरेस्ट और इंडिविजुअल कम्युनिटी मेंबर के एक्सपीरियंसेस भी बड़े मैटर करते हैं। देखिए हम सारी चीज़ें सिर्फ किताबों से नहीं सीखते, हम एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमारे कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट करता है, दैट इज़ ऑल्सो एसेट। लोकल सिटीजन एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वैसे तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सब कुछ होती हैं, लेकिन ये बात मैं पहले दिन से आपको समझा रही हूँ कि कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। सो इसीलिए जो कम्युनिटी के सिटीज़न है, लोकल सिटीज़न है, लोकल सिटीजन्स की एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लोकल जो वहाँ पे कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, सिटीज़न मौजूद हैं, उनकी एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशन उनकी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोकल सिटीज़न उस ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन का हिस्सा होंगे तो वो वहाँ के लोकल लोग अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे समझ सकेंगे और उनके पास ज़्यादा अच्छे मेथड्स होंगे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। इसके अलावा लोकल इंस्टीट्यूशन हर सेंस में, चाहे वो
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, वो भी अगर लोकल होंगे तो ये लोकल होंगे तो ही उनके एसेट्स होंगे ना, और लोकल होंगे तो ही वो उनकी प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकेंगे। अब हम ज़रा कम्युनिटी को असेस करने के डिफरेंट मेथड्स देख लेते हैं, कम्युनिटी असेसमेंट मेथड्स। सबसे पहले आ जाता है सर्वे। सर्वे करना, सर्वे के कुछ फेजेस होंगे जिनसे गुजर के सर्वे कंप्लीट होगा। सर्वे का पहला फेज जो है प्लानिंग फेज है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी काम को करने से पहले उसका कंप्लीट प्लान बनाना होता है। जैसे हम अपने पेशेंट की असेसमेंट करने के बाद, प्रॉब्लम डायग्नोज करने के बाद क्या करते हैं, फ़ौरन से जाके उसके साथ इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं ना शुरू कर देते, पहले हम पूरा प्लान बनाते हैं कि हमारे पेशेंट की ये प्रॉब्लम्स है, ये डायग्नोसिस है, तो इस डायग्नोसिस के लिए मुझे ये प्लान बनाना है, मुझे ये करना है, उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। तो इसी तरह से सर्वे है, सर्वे में आपने पहले आपका प्लानिंग फेज आएगी। सबसे पहले प्लानिंग फेज में डिटरमिन व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड एंड व्हाई, determine precise data to be collected, select population to be surveyed, they might be individuals, household, a city block, select survey method or instrument to be used such as interview, telephone calls, questionnaires, determine sampling size such as a percentage of the total population in question। प्लानिंग फेज में आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें प्लान करनी है। सबसे पहले आपने ये डिटरमिन करना है कि मुझे इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, मुझे किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और क्यों करनी है, तो ही मैं मतलब किस चीज़ के बारे में सर्वे करने जा रही हूँ, मुझे पहले से पता होगा तो मैं जाऊँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हाउसिंग के बारे में सर्वे करना चाह रहे हैं कि किस किस्म की हाउसेज़ हैं वहाँ पे, तो आप जाके क्या किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, आपको पहले से माइंड में क्लियर होगा कि मुझे हाउसिंग पैटर्न पर सर्वे करना है, तो ही आप जाके सर्वे कर सकेंगे ना। सो दिस इज़ नेसेसरी कि आप पहले से इंफॉर्मेशन को डिटरमिन कर लें कि कौन सी इंफॉर्मेशन की मुझे ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है। उसके बाद जो भी डाटा कलेक्ट करना है थोड़ा सा माइंड में रखें कि प्रिसाइजली कि मुझे क्या डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है जी। फिर बेटा हमने किन लोगों से डाटा कलेक्ट करना है, वो पॉपुलेशन भी तो सर्वे करना पड़ेगा, सर्वे के लिए पॉपुलेशन भी तो सेलेक्ट करना पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर एक कम्युनिटी है तो उसमें अगर कोई 10,000 लोग हैं तो 10 के 10,000 लोगों से आप जाके बात कर लेंगे या उनसे डाटा कलेक्ट कर लेंगे, ये भी थोड़ा मुश्किल काम होगा। तो इसलिए हमें पहले एक पॉपुलेशन सेलेक्ट करनी होगी कि हमने इस पॉपुलेशन से सर्वे करना है। फिर हमने सर्वे का मेथड सेलेक्ट करना है, मेथड या फिर इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं कि आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है सर्वे करने के लिए। जैसे क्या आप इंटरव्यू के थ्रू लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, या आप टेलीफोन कॉल्स करेंगे, या फिर आप कोई क्वेश्चनियर बना के उन्हें प्रेजेंट करेंगे कि आप इस क्वेश्चनियर को फिल करके दें, ठीक है। फिर सैम्पल साइज़ डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है। अब पॉपुलेशन आपने सेलेक्ट कर ली तो अब पूरी की पूरी पॉपुलेशन से तो आपने ये नहीं ना करना कि क्वेश्चंस के आंसर मांगे और सारा कुछ नहीं, आपने एक परसेंटेज होगी, ज़ाहिर है उस पॉपुलेशन की एक परसेंटेज होगी जिससे आप टोटल जो क्वेश्चनियर फिल करवाएं या टेलीफोन करें, इंटरव्यू करें, जो कुछ भी करें, लेकिन एक स्पेसिफिक परसेंटेज होगी उस पॉपुलेशन की जो आपका सैम्पल साइज़ होगा और उसी से आप उस सर्वे कंडक्ट करेंगे। तो ये प्लानिंग फेज़ है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर्वे स्टार्ट करने से पहले आपने ये सारी चीज़ें डिटरमिन कर ली, सेलेक्ट कर ली, दिस इज़ कॉल्ड प्लानिंग। फिर बेटा सेकंड फेज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड डाटा कलेक्शन फेज़। डाटा कलेक्शन फेज़ में आइडेंटिफाई एंड ट्रेन डाटा कलेक्टर्स। डाटा कलेक्शन फेज़ में पहले तो आपने लोग ढूंढने, सेलेक्ट करने हैं
कि मैं किस से डाटा कलेक्ट करवाऊँगा। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब आपने उनको ट्रेन भी करना है कि डाटा कलेक्टर्स को कोई ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने इंटरव्यू लेना है तो अब वो इंटरव्यूअर्स होंगे, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी कि उन्हें किस किस्म से इंटरव्यू लेना है, आपका फ़ोकस क्या है, किस चीज़ को फ़ोकस में रख के जो है ना इंटरव्यू कंडक्ट करना है, या अगर क्वेश्चनियर के थ्रू आप कर रहे हैं तो क्वेश्चनियर किस तरह से फिल करवाना है, ये सारी चीज़ें। प्री टेस्ट एंड एडजस्ट इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से रिसर्च के लिए डाटा कलेक्ट किया जा रहा होता है, ज़ाहिर है तो इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी, उसकी रिलायबिलिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता है ना। तो इसलिए आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू है या टेलीफोनिक कॉल्स है या क्वेश्चनियर है, तो उसको आपने एडजस्ट करना है और उसका पहले एक प्री टेस्ट लेना है, ये देखने के लिए कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं वो वैलिड है या नहीं है। Supervise actual collection including plans for non-responses और refusals। इसके अलावा जो एक्चुअल डाटा कलेक्शन हो रही है उसको भी आपने सुपरवाइज करना है, जिसमें आपके प्लान में ये भी शामिल होना चाहिए कि अगर कोई नॉन रिस्पॉन्सेज हैं, मतलब लोग आपसे डाटा कलेक्ट करते हुए नहीं आपको डाटा देना चाह रहे हैं, या फिर वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि नहीं जी वी डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ रिसर्च, या फिर वी डोंट वांट टू आंसर यू, हम अपना डाटा मतलब आपके डाटा कलेक्शन में हम आपके साथ हेल्प आउट नहीं कर सकते, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो उसके लिए भी आपकी प्लानिंग पहले से मौजूद होनी चाहिए कि ऐसा हो जाएगा तो ज़ाहिर है मेरा तो एक सैम्पल साइज़ है ना, उससे मुझे किस तरह से पूरा करना है, और अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं उसे क्या कन्विंस कर सकता हूँ, किस तरह से कर सकता हूँ, ये सारा कुछ भी आपकी प्लानिंग में शामिल होना चाहिए। और मैंने जो ये आपसे कहा कि एक्चुअल डाटा कलेक्शन को सुपरवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर सिर्फ किताबों पे और कागज़ों पे हमने ये बातें लिख के छोड़ दी तो इनका तो कोई फ़ायदा ना हुआ ना। आपने वो चीज़ें वहाँ पे लिख के छोड़ दी तो उससे आपको क्या मिला, अगर आप एक्चुअली डाटा जो है वो ठीक से कलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए एक्चुअल डाटा कलेक्शन जिस टाइम हो रही हो उस टाइम उसकी सुपरविजन बहुत ज़रूरी है कि वाकई जो लोग हैं वो ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर घर में बैठ के उन्होंने क्वेश्चन फिल कर दिए हैं सबके, और जो लोग इनकार कर रहे हैं या फिर नॉन रिस्पॉन्डेंट है तो उनके लिए भी क्या करना है क्या नहीं, वो जब आप खुद फील्ड में जो भी चीज़ों को सुपरवाइज कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो ही आप जान सकेंगे, आपको पता लग सकेगा, अदरवाइज उसके अलावा नहीं पता लग सकता। उसके बाद डाटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन फेज आती है। जो डाटा आपने कलेक्ट किया है, ज़ाहिर है ऑर्गेनाइज द डाटा फॉर टेबुलेशन एंड एनालिसिस, अप्लाई अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड, determine relationship and significance of analysis, report results including implications, recommendation and next step needed, provide feedback to the population surveyed through our community forum. We will discuss it later. अब आ जाता है डाटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन की फेज़। सबको पता है, आप लोग पढ़ के आ चुके हैं रिसर्च, डाटा जब कलेक्ट कर लिया जाता है तो नेक्स्ट फेज़ यही होती है कि उस सारे डाटा को पहले टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है उसका। उसके ऊपर पता है आपको स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं डिफरेंट, वो अप्लाई करके उनका एनालिसिस किया जाता है। फिर हम रिलेशनशिप डिटरमिन करते हैं, ज़ाहिर है हमारे कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उनके दरमियान हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया, क्या आउटकम आया, क्या रिलेशनशिप उनका आया, वो हम डिटरमिन करते हैं। और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट्स आए होते हैं वो बताए जाते हैं, वो रिपोर्ट किए जाते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं रिज़ल्ट्स में, उसमें ये होता है बेटा कि इम्प्लीकेशंस बताई जाती हैं कि क्या क्या चीज़ें अब अप्लाई करने की उस कम्युनिटी में, हम अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी रिजल्ट्स क्या क्या चीज़ें इम्प्लीकेशन करने की ज़रूरत है उस कम्युनिटी में, क्या क्या चीज़ें हम मज़ीद उन्हें रिकमेंड कर रहे हैं, कौन कौन से नेक्स्ट स्टेप्स हैं जो जिनकी ज़रूरत है करने, मतलब इस कम्युनिटी हमने एक स्टडी कंडक्ट कर ली, अब मज़ीद इसको आगे लेकर जाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके अलावा ज़ाहिर है जिस पॉपुलेशन को आपने सर्वे किया है उनको तो फीडबैक देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि उनकी कोई प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की तो उसके लिए तो उनको तो इम्प्लीकेशन बताने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सो फीडबैक भी उस पॉपुलेशन को देना बहुत ज़रूरी होता है। वो किसी भी कम्युनिटी के डिफरेंट फोरम्स होते हैं, वो हम इस्तेमाल करके उनको फीडबैक दे सकते हैं। चलिए अटेंडेंस का टाइम हो गया, अभी आप स्टूडेंट्स जो है एक तो अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए और किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए।
आज के लेक्चर्स में इसलिए कुछ पूछना है आज के लेक्चर में बाकी जो डिजीज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कल तो हमारा लेक्चर तो से नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगर किसी को कुछ पूछना है आज करेंगे सिर्फ 8 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क हुई है और मेरे पास 14 स्टूडेंट शो हो रहे हैं। जिसने अपने रोल नंबर के साथ अटेंडेंस मुझे नहीं मार्क करवाई उनकी एब्सेंट मार्क होगी। सो जल्दी से जो भी स्टूडेंट रह गए हैं अपना रोल नंबर के साथ अटेंडेंस मार्क करवाएं।
جی سر تھینک یو اللہ حافظ.
اوکے اسٹوڈینٹس، کوئی کوئری نہیں ہے آپ لوگوں کی تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے جی، خیال رکھیے گا اپنا آپ لوگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.